Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine. In the last video, we discussed the social differences, why the social differences occur, and I told you regarding the overlapping differences and cross-cutting differences. Now the last topic of this chapter is what are the three determinants of the social differences which the people face in their country. Determinants means result, demand. अगर किसी सोसाइटी में differences हैं तो उनका बाहर आना या उनका आउटकम क्या रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि उन सोशल डिफरेंसेस को किस तरह से टैकल किया जाए. So the three factors which are very crucial in deciding the outcomes of the politics of social divisions are: first, how people perceive their identities. लोग अपनी identities को किस तरह से देखते हैं, how they understand what they are or who they are. If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to solve. अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सिर्फ अपने बारे में बात करती है, तो ऐसे डिफरेंसेस को सॉर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर हम सब मिलकर अपनी आइडेंटिटीज को देखते हैं, then it is easy to sort our problems. For example, you can take up the example of Belgium. In Belgium, the people looked at their identities as the people or the citizens of Belgium, not as that they are Germans or they are Dutch or they are French. अगर वो अपने आप को अपनी लैंग्वेज के साथ सिर्फ एसोसिएट करके अपनी आइडेंटिटीज को देखते या समझते, तो it would have been very difficult to solve the linguistic problem in Belgium. But they saw themselves as the people, the citizens of Belgium. हम बेल्जियम के सिटीजन हैं, हम अपनी आइडेंटिटीज अपनी लैंग्वेज से नहीं अपने देश से चाहते हैं. Similarly, you can take the example of India. We, the people of India, consider ourselves as Indians. अगर हम अपने आप को माने कि मैं सिर्फ राजस्थानी हूँ और आई एम जस्ट अ महाराष्ट्रियन और अ गुजराती और अ पंजाबी, then the problem, the social differences will definitely arise in the country and it will become very violent. जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं किसी भी कंट्री में, वो इसी वजह से होते हैं बिकॉज पीपल डू नॉट सी देयर आइडेंटिटीज एज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बट दे सी देमसेल्व्स दैट दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अ पर्टिकुलर सोसाइटी. तो जब भी हम अपने आप को एक अलग सा कुछ मानेंगे अपनी एक सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं, तो वहां पे डिफरेंसेस पैदा होते हैं एंड देन दे बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट. But if the people see their identities as collective identities, that they belong to a particular nation, तो उन differences को solve करना बहुत easy होता है. Like it was done in Belgium, और हमने federalism में we have studied it was done in India through linguistic state policies and language policies. Now the second way how these differences can be tackled, that is how political leaders raise the demand of any community. We all know that political leaders, for the sake of votes or to be in power, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ डील करते हैं जहां से उनको पता होता है that they will catch hold of maximum of votes. तो पॉलिटिकल लीडर्स उस कम्युनिटी की डिमांड को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसको किस तरह से रेज करते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी. बिकॉज इट इज इजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी. अब अगर आपके एरिया का पॉलिटिकल लीडर कोई एक बेवकूफ़ी की डिमांड करता है विच इज नॉट द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व इट. सपोज आपके यहाँ से वैशाली से डिमांड की जाती है कि स्पेशली एक हॉल बनाया जाए इन विच अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, आई एम नॉट नेमिंग एनी कम्युनिटी, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही उस हॉल को एक्सेस कर पाएंगे एंड इट शुड बी बिल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के खिलाफ है.
Or for example, there are number of states in India which are dominated by different religions. Suppose Hyderabad state से एक proposal आता है that Hyderabad state should be declared as a Muslim state, तो वो नहीं हो सकता because India is a secular country. हमने secularism पढ़ा था. We all know that India belongs to a nation. India is a nation in which all the religion are in the same category. इंडिया का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. तो सिर्फ हैदराबाद स्टेट को एक इस्लामिक स्टेट या एक बॉम्बन स्टेट या एक मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश से डिमांड आए दैट इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ हिंदू स्टेट, ऐसा नहीं होगा. दैट इज अ रॉन्ग जेस्चर बिकॉज इट इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरह की डिमांड को रेज करता है विच इज नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सो this can never solve the problem of the social differences. Social differences की problem तभी solve हो सकती है when it is within the boundary of the constitution. श्रीलंका में there was a major problem of civil war. क्यों civil war हुआ? Because only one group, सिन्हालास को, बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया, बाकी दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने अपने आप को एलिनेटेड फील किया. बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में इस तरह से नहीं होता. तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि लीडर्स किस तरह से उन डिमांड्स को फॉरवर्ड लाते हैं. वहां सिन्हाला लीडर्स आगे लेकर आए, सिन्हाला स्टेट बनाने की बात करी, बुद्धिज्म को फॉस्टर रिलीजन बनाने की बात करी, एंड द प्रॉब्लम अराइज्ड एज एंड इट टर्न इनटू अ सिविल वॉर. तीसरी कैटेगरी, द थर्ड वे, इज हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स. बहुत कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो लोगों की डिमांड को किस तरह से, डिफरेंट ग्रुप्स जो डिमांड करते हैं उसको किस तरह से सॉर्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, एज वी सॉ इन द एग्जाम्पल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, इफ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर and accommodate the reasonable demands of minority community, social divisions became less threatening for the country. But if they try to suppress such a demand in the name of national unity, then the end result is often quite opposite. जैसा कि हमने देखा in the case of Sri Lanka, it resulted in civil war. अगर गवर्नमेंट वहाँ पे जो तमिलियंस ने एक अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी, एलम की, या उन्होंने कहा कि तमिल को भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस आप डिक्लेयर करिए, हम लोगों को भी जॉब में रिजर्वेशंस दीजिए, इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशंस ऑफर करिए. अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने इस बात को माना होता, समझा होता, तो प्रॉब्लम जो फेस की गई इन श्रीलंका वो प्रॉब्लम नहीं होती. सिविल वॉर का प्रॉब्लम वुड हैव नॉट बीन देयर, बट दे डिड नॉट. वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज को नहीं समझा. विद द रिजल्ट दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ सिविल वॉर. तो बहुत कुछ डिपेंड करता है हाउ द गवर्नमेंट टेक्स केयर, व्हाट वेज द गवर्नमेंट सॉर्ट द सोशल डिफरेंसेस इन द नेशन. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज, in our democracy the political expression of social division is very normal and it can be healthy. जरूरी नहीं है हर, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था कि हर सोशल डिविजन अपने आप में एक्सप्लोसिव हो और इट वुड हार्म द डेमोक्रेसी. नहीं, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक नेशन में रहते हैं, तो वहाँ पे लोगों के अपने अलग अलग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, अपने अपने अलग अलग वे हो सकते हैं चीज़ों से डील करने के लिए, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट कैन बी वेरी हेल्दी. Why? Because this allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. अगर लोगों को आज़ादी ना हो बोलने की, एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, या जिन प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं, टू पुट अप द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो मार्जिनल ग्रुप्स हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, तो फिर तो सोसाइटी में अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी और फिर उसका आउटब्रस्ट होगा इन सम सॉर्ट ऑफ वायलेंट फीचर. तो इट्स बेटर कि लोगों के जो भी डिफरेंसेस हैं, इट शुड कम आउट, दे शुड कम आउट ऑफ इट एंड देन इट शुड बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. तभी गवर्नमेंट उनको अटेंड करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड विद दिस वी have end up with this chapter. I will soon be sending a worksheet, an objective kind of worksheet from this chapter on your WhatsApp group. ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू पहुंच जाएगा.
and that you can do it in your notebooks. So bye-bye, have a nice day. Again, if you have any problem in explanation or in any topic, you may give me a call or you can send me a message on my WhatsApp number. Thank you.